رات 10 بجے کے بعد ہوتے ہیں، جب یہ رات کو خالی کرنے کے بعد 2 دن تک اس کو یہاں پہ روکا جاتا ہے۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس کی جانب سے سرکی روڈ، ایئرپورٹ روڈ، جیل جبل نور پر مزدار ٹرکوں اور دیگر بڑی گاڑیوں کو کئی گھنٹے روکا جاتا ہے۔ طرف جا رہا ہے، مطلب وہ 1-2 سال میں وہ بھی تیار ہوتا ہے تو سارا لوگ ادھر جائیں گے، وہاں رہائش پذیر کرتے ہیں، تو یہ سارا لوگ یہاں آتے ہیں، تو یہ 2 خانوں میں اتنا ٹریفک کیسے؟ وہ بتا تھا ہم اوپر بات کریں گے، پھر آپ لوگوں کو جواب دے دیں گے، کسی کے پاس یہ جواب نہیں۔ معزز صاحب حضرات، بلوچستان کے تاجر اور ٹرانسپورٹرز اس وقت گوناگون مسائل سے دوچار ہے۔ حکومت اور انتظامیہ ہمارے مسائل حل کرنے کی بجائے اس میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہے، جو کسی بھی طرح صوبے کی مفاد میں نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئٹہ شہر کے اندر بلیلی چیک پوسٹ کے قریب ٹول پلازہ بنایا گیا ہے، جس میں گزرنے کے لیے صرف 2 راستے رکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سارا دن شہریوں، تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کو رش کی وجہ سے ذہنی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معزز صاحب حضرات، ملک میں ٹول پلازے جہاں ضلع کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں بنائے جاتے ہیں، لیکن کوئٹہ میں شہر کے اندر ٹول پلازہ بنانا سمجھ سے بلاتا ہے۔ ٹول پلازے کی وجہ سے سڑک کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے اور بچے بروقت اسکول اور تاجروں کا سامان دکانوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بلیلی پر قائم کیے جانے والے ٹول پلازے کو پوری طور پر یاروں کے مقام پر بنانے کی اقدامات جاری کرے، تاکہ تاجروں اور شہریوں کو پریشانی سے نجات مل سکے، کیونکہ شہر کے اندر ٹول پلازے کے قیام سے کوئٹہ کے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور گاڑیوں کی لمبی لائنیں ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اسپتال تک پہنچانے میں بھی سخت مشکلات درپیش آتی ہے، جبکہ کسٹم اور ایف سی کی جانب سے پہلے ہی رکاوٹوں کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹول پلازے کے قیام سے ٹرانسپورٹروں، تاجروں اور شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بلیلی پر قائم کیے جانے والے ٹول پلازے کے قیام سے ٹرانسپورٹروں، تاجروں اور عوام میں تحفظات پائے جاتے ہیں، لہذا بلیلی پر قائم ٹول پلازے کو پوری طور پر ختم کیا جائے اور اسی شہر سے دور جہاں سے ضلع کی حدود شروع ہوتی ہے یاروں کے مقام پر بنایا جائے، تاکہ شہریوں، ٹرانسپورٹروں اور تاجروں کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ حکومت وقت اور متعلقہ اداروں کی توجہ ہزارگنجی منڈی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے کو درپیش اہم مسائل کی جانب منتقل کروانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہزارگنجی منڈی میں سیکورٹی کی مؤثر اور جامع انتظامات کیے جائے، تاکہ تاجروں، مزدوروں اور ٹرانسپورٹس کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ سرکی روڈ پر لوڈنگ گاڑیوں کو 24 گھنٹے روکا جاتا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ان گاڑیوں کو مشرقی بائی پاس سے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ ایئرپورٹ اور جبل نور پر ٹریفک پولیس اہلکار گاڑیوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، بلیلی چیک پوسٹ پر قائم ٹول پلازہ کو جلد از جلد ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹر کے لیے مالی بوجھ اور وقت کے ضیاع کا سبب بن رہا ہے۔ اسی طرح ہزارگنجی منڈی میں پارکنگ کی مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پوری طور پر وسیع اور منظم پارکنگ ایریا قائم کیا جائے۔ ساتھ ہی منڈی میں ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ایمرجنسی حادثے کی صورت میں بروقت امدادی کارروائی ممکن ہو سکے۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 بجے تک مال بردار گاڑیوں کو کلپور سے چھوڑا جائے، تاکہ لوڈ گاڑیاں بروقت اپنے منزل تک پہنچ سکے۔ معزز صاحب حضرات، دوسری جانب ٹریفک پولیس کی جانب سے سرکی روڈ، ایئرپورٹ روڈ، جیل جبل نور پر مزدار ٹرکوں اور دیگر بڑی گاڑیوں کو کئی گھنٹے روکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیوروں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تاجروں کا سامان گوداموں اور دکانوں تک دیر سے پہنچتا ہے، جس سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب کولپور اور دیگر قومی شاہراہوں کو شام 6 بجے کے بعد ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں، تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ کولپور کے مقام پر کوئٹہ سے پنجاب اور سندھ جانے والی مال
बरदार गाड़ियों और वहाँ से कोयटा आने वाले गाड़ियों को शाम 6 बजे के बाद गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवरों को पूरी रात रोड पर गुजरानी पड़ती है और इनका वक्त भी ज़ाया होता है। और ट्रकों में लोड सब्जियां और फ्रूट बर वक्त मंडियों तक नहीं पहुंच सकता और गाड़ियों में ख़राब हो जाता है, जिससे ताजरों को माली नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ट्रांसपोर्टों को बलाजवाज़ तंग करने का सिलसिला बंद करे और उन्हें घंटों घंटों रोड पर खड़ा करने से ग्रेज करे और कोलपुर के मकाम पर गाड़ियों को शाम 6 बजे के बाद रोकने का सिलसिला भी बंद किया जाए और माल बरदार गाड़ियों को रात के वक्त भी सफ़र करने की इजाज़त दी जाए, ताकि ताजरों का सामान सब्जियां फ्रूट बर वक्त मंडियों तक पहुँच सके। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अगर हुकूमत और इंतज़ामिया ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और पाकिस्तान मज़दा ट्रक ग्रोस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जायज़ मुतालिबात तस्लीम नहीं किए और बरेली पर कायम किए जाने वाले टोल प्लाज़े को ख़त्म नहीं किया, तो मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और पाकिस्तान मज़दा ट्रक ग्रोस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मिलकर सूबे भर में सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसके तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और इंतज़ामिया पर आयद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम अब सीज़न शुरू होते हैं, जिस तरह हमारे बलूचिस्तान के सीज़न है, ज़मींदारों के फल वगैरह शुरू होते हैं, तो कम से कम एक तो शहर में एंट्री होते हैं, दूसरा नेशनल हाईवे जिससे गुजरते हैं कराची की तरफ, कम से कम हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं। एक ये, दूसरा जिस तरह सदर साहब ने कहा कि कोयटा शहर के अंदर जो हमारे मसले मसाइल हैं, एक गाड़ी कराची से सफ़र करके 12-13 घंटे के बाद कोयटा शहर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 5 से 10 घंटे वहाँ सरियाब या हज़ारगंजी में इंतज़ार करते, क्योंकि सुबह आया तो एंट्री नहीं होते, रात 10 बजे के बाद होते। जब ये रात को खाली करने के बाद 2 दिन तक इसको यहाँ पर रोका जाता है। 2 दिन के बाद उसको छोड़ते हैं। अगर कोई गाड़ी वहाँ से निकलने की कोशिश करे 3000, 4000, 5000 ट्रैफिक वाले इसको चालान कर लेते। एक ये, दूसरा शहर के अंदर जबल नूर पे मोटरवे वाले लोडिंग अनलोडिंग जितने भी गाड़ियाँ आ रहा है 2000, 3000, 5000 इनको चालान दे देते हैं। और इसी तरह हमारे एयरपोर्ट चौक पे हमारे ट्रैफिक वाले बिल्कुल न लाइसेंस के पूछते हैं, न डॉक्यूमेंट्स, किसी चीज़ का नहीं, भाई 2000, 3000, 5000 बस ड्राइवरों से ले लेते हैं। जिस तरह आपने कहा कितना नुकसान होता है, अब आप बताओ इस टाइम पे बल्कि आपकी पूरी मईशत को और ट्रांसपोर्ट हुआ है कि पूरी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एक गाड़ी जब बड़े खड़े होते हैं यहाँ पे, बड़ी गाड़ी जो ठेला आते हैं 12,000 रुपये उसका दिहाड़ी है। आप बताओ इसको कौन देगा? जिसने माल भेजा है तो 12,000 भर देगा अपने जेब से। 2 दिन खड़ा हुआ 24,000। आम ट्रके है 10,000 उनका दिहाड़ी है। इसी तरह 8 नट हमारा गाड़ी है, उनका 8,000 है। 6 नट गाड़ी है, उनका 6,000 दिहाड़ी है। अब आप बताओ, उनसे तो हम लड़ नहीं सकते। अच्छा, कोलपुर पर 6 बजे से गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था, ये 2 साल से जो भी लैंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, तो कोलपुर पे 6 बजे से इन्होंने कहा कि अलाउ नहीं। अब ये जवान क्या करते, 3 बजे से हमारे गाड़ियों को रोकते हैं। जब मगरिब हुआ, मगरिब के बाद ठीक है हालात सही नहीं, गाड़ियों को रोक लो। अब किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 10,000 लेके रातों रात उसको छोड़ देते हैं। हमारे लोगों का ये ख्याल था कि ये मतलब 5-6 खाने यहाँ से दे देंगे, 5-6 खाने वहाँ से दे देंगे, चौड़ा लंबा वो टोल प्लाजा बनाएंगे कि 5-5 गाड़ियाँ, 6-6 गाड़ियाँ एकदम क्रॉस हो जाता है। अभी जब हम लोगों ने देखा 2 खाने दिया है, अभी खाली एक जंप है वहाँ, जब गाड़ी खाली ब्रेक मारता है उसके पीछे लेने लगा हुआ है। आप तो गया हुआ है खामखा, आपने देखा होगा कि इस ये खाली एक ब्रेक से मतलब 100 गाड़ी 150 गाड़ियाँ जब ये स्लो होता है तो सारा गाड़ियाँ इसके पीछे कतारों में खड़ा होता है। जब ये पर्ची काटता है तो फिर 20 गाड़ियाँ जब एकदम आता है, 20 गाड़ियों का पर्ची जब ये काटता है 200 गाड़ी इसके पीछे और खड़ा होता है, फिर 600 गाड़ी इसके पीछे खड़ा होता है। कैसा पास करेंगे? तो फिर हमारा एहतजाज, फिर हमारा वही सिलसिले पहले से हम ये FC वालों से और चिटम वालों से तंग आ चुका है कि यहाँ नाका नहीं
डालो। सर, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि यह नाका उठाओ। ये बच्चों के लिए बहुत तकलीफ है, जब सुबह सुबह स्कूल में आता है वो कतारों में खड़े, मरीजों के लिए बहुत तकलीफ है। तो ये अभी नीचे के DHA के जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी कामयाबी की तरफ जा रहा है, मतलब वो 1-2 साल में वो भी तैयार होता है तो सारा लोग उधर जाएंगे, वहाँ रहाइश पजीर करते हैं। तो ये सारा लोग यहाँ आते हैं, तो ये 2 खानों में इतना ट्रैफिक कैसे पास होता है? नहीं, हम लोग ये कह रहा है कि जहाँ से ज़िला शुरू होता है वहाँ से इसको लगाओ, जैसा यहाँ लगा हुआ है लखपास की इस तरफ, जब ज़िला शुरू होता है तो यहाँ लगा हुआ है, सही। हाँ, मैंने यारों का मुतालबा कर दिया कि यारों में लगाओ, न मैंने यारों का मुतालबा कर दिया कि यारों में लगाओ, सही है, वो जगह खुला भी नहीं। उसने तो, हम लोगों ने तो बात किया है, वो बोलता था हम ऊपर बात करेंगे, फिर आप लोगों को जवाब दे देंगे। किसी के पास ये जवाब नहीं क्या आपने शहर के अंदर क्यों बनाया टोल प्लाजा? कुछ ला के सारा लोग यहाँ इस रास्ते से आता है, सुबह सुबह स्कूल में बच्चे लाता है तो वो फिर लिंदू में खड़ा होता है, और हमारे इलाके के जितने मरीज़ और वो आता है तो ये 2 खानों में तो इतना ट्रैफिक कैसा पास होता है? और ये तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो हम लोग एहतजाज करेंगे, हम और नवाब साहब मुश्तरका, नवाब मंगल साहब इसीलिए आया हुआ है कराची से कि ये टोल प्लाजा है और कुलपुर में जो गाड़ियों के लिए तकलीफ है, बाईपास में हज़ारगंजी में जो ट्रकों के लिए, माजदा ट्रकों के लिए जो इनका ट्रांसपोर्ट है, इनके लिए तकलीफ है, हमारे ताजरों के लिए तकलीफ है। हमारा तो मुश्तरका हिसाब है, अगर गाड़ी इनका है तो माल हमारा लोगों का है, ताजरों का है, तो दोनों तकलीफ में होता है, दोनों परेशान होता है। इसलिए हम अगर हमारे मसले को हल नहीं किया गया, हमारे मसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम मुश्तरका एहतजाज का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम लोग जो है मुश्तरका ऐलान का वो मुश्तरका ऐलान करें, जिसमें शटरडाउन हड़ताल हो, जिसमें पायजाम हो, ये सारा इसमें शामिल हो जाता है इंशाल्लाह। 9 अरब हमारे ट्रांसपोर्ट को नुकसान हुआ और 4.5 अरब हमारी हुकूमत को नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। इसमें चीफ सेक्रेटरी, आपके वज़ीर आला, गवर्नर, किस किस के पास हम नहीं गए? आप बताओ कौन से घर हमने खटखटाया नहीं? आज तक किसी को 10 रुपये भी नहीं मिला। और इसी तरह ये टूल जिस तरह भाई ने कहा कि लगा ले, मैं तो इसको बिल्कुल मुस्तरद कर लेता हूँ। कोयटा कराची डबल रोड बना है, हर शहर में जो इसका दिल चाहे हम टैक्स देने के लिए तैयार है। अब एक गाड़ी हमारे यहाँ से निकलते हैं, अगर कोयटा से निकलते हैं, यूँ घूम के पूरा पाकिस्तान में वापस आते हैं, 1,27,000 छोटी गाड़ी हम टैक्स देते हैं। रूट परमिट की मद में, फिटनेस के मद में, टूल प्लाजे के मद में, मुख्तलिफ आजकल हमारे यहाँ से उधर तक, बल्कि CM को 4 दफ़ा मैंने खुद दरख्वास्तें दी थी, चीफ सेक्रेटरी को मैंने दरख्वास्त दी, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा है। अब हमारे गाड़ियों को इतने तंग कर रहे हैं, हर चेक पोस्ट में 5,000 10,000 इनसे लेते, आप बताओ कहाँ जाए?